کیا شاہد خاقان کو انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا؟ He could have straight away nominate Mian Shahbaz Sharif or any member of his family. First choice, his first announcement was Shahbaz Sharif. Can you assure me کہ ایک دن مسلم لیگ نون کا صدر اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ شریفوں کے علاوہ بھی کوئی بنے گا؟ باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے کوارٹرز کے اندر کہ نیکسٹ الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اگلے سال بھی ہو جائیں. لنڈن کی ہواؤں میں بھی کچھ اس طرح کی افواہیں ہیں یا نہیں؟ I'm not contesting over here کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے، یا بڑے میاں صاحب ٹھیک ہیں یا چھوٹے میاں صاحب ٹھیک ہیں. I'm not contesting that. My point is کہ بڑا بھائی جب ایک بات کرتا ہے تو چھوٹا بھائی تک اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، کل ہم نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کا پہلا حصہ ہم نے نشر کیا تھا، جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈار صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دیگر ایشوز تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. آج ڈار صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے کچھ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر کیا صورتحال ہے، شہباز شریف گروپ، مریم نواز گروپ، کچھ اس پہ بھی بات ہوگی، اور پی ڈی ایم کے معاملات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پینما کا معاملہ آتا ہے، چودھری نثار صاحب جو ہیں اسٹل ہی واز این انٹیگرل پارٹ آف یور ہول سیٹ اپ. آہستہ آہستہ رفس جو ہیں آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہی واز ایڈمنٹ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات خراب کر رہے ہیں. مریم نواز اور ان کا جو گروپ ہے وہ جس طرح فالو کر رہا ہے ساری چیز کو، یہ ڈیزاسٹر کی طرف جائے گا. اور الٹیمیٹلی وہ یہ آج بھی غالباً یہی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط چوائسز کی، اور جس کی وجہ سے آج پارٹی یہاں پہ صورتحال آ کے کھڑی ہوئی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ چودھری نثار صاحب ہیڈ اے ڈفرنٹ اوپینین کہ معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا. یہ ہماری ایک تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہوں گا، یہ ہمارا انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے. ہر پارٹی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہر پارٹی میں میرا خیال ہے کہ کسی بھی پارٹی میں میکسیمم جو اسپیس دی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، آپ کرٹیسائز کریں، وہ پی ایم ایل این ہے. میاں نواز شریف ایوری ون اسپیس کے جی آپ بتائیں، اور پھر وہ فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ پھر فیصلہ افہام و تفہیم سے ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ایک ایشو ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو بات ہے. میاں صاحب کا بیانیہ جو پہلے تھا پاناما کے وقت وہ آج بھی ہے. مے بی اٹس اسٹرانگر. ہی ڈزنٹ بلیو کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ پہ ملک کی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو چلنا چاہیے. He has his own view and he is in line with democratic values. میاں صاحب has the opinion کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں اس ملک کی ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے. This is what you're saying کہ basically نہیں چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے. He says کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. کہیں آئین میں مجھے دکھا رہے کہ لکھا ہوا ہے. ہاں، ہر اداروں کی وہ ہوتی تھی. there are forums. There is a national security committee جس میں دونوں سائڈز ہوتی ہیں، اس کی ہمارے درجنوں میٹنگ ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی فیڈ بیک نہیں دے سکتے یا ان پٹ نہیں دے سکتے، لیکن کنسلٹیٹو پروسیس. لیکن اگر یہ ہے کہ ان کی ڈکٹیشن پہ جیسے اب چلیے ڈیموکریٹک حکومت چلے تو میرے وہ آئین میں گنجائش نہیں ہے. بٹ میاں صاحب چیز کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرے، میرے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آئین کی بالادستی ہو. اس میں ڈاکٹر صاحب پھر یہ پوائنٹ آتا ہے کہ بیسکلی چودھری نثار صاحب کے ایشو کے اوپر ہم دوبارہ آئے ہیں. بیسکلی ہی فیلٹ کہ سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ شریف فیملی کے اندر جس شخص کے نام کے اینڈ پہ یا تو شریف آتا ہے یا جس طرح آپ ان کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں، یہ بیسکلی فیملی ہی اپنے اندر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہی ہے. جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اپنی زندگی کے سال دیے ہیں اس پارٹی کو، ان کے سجیشنز کو میٹر نہیں کیا جا رہا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی پارٹی بھی جو ہے اس کے اندر ایک واضح سپلٹ نظر آتا ہے بٹوین دا شہباز شریف گروپ اینڈ دا مریم نواز گروپ، کہ آپس میں ہی چاچا اور بھتیجی جو ہیں ان کے درمیان آپس میں ایک ٹسل نظر آتی ہے پارٹی کے اندر. نہیں، مرحلے آپ اگر لیٹر پارٹ لے لیا جائے تو وہ تو دونوں کے ساتھ شریف لگتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے پریکٹیکل ایگزامپل وچ یو ہیو سائٹڈ کہ بھئی مریم بھی شریف فیملی سے اور وہ بھی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب اٹ از اسٹل بٹوین دی شریفز، اٹ از ناٹ سم ون ا تھرڈ پرسن. کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی خاقان نہیں ہے، کوئی خواجہ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو شریف ورسز شریف ہی ہے فائٹ. نہیں، میرا خیال ہے منصور صاحب یہ کوئی تھوڑی سی مس انٹرپریٹیشن ہے کہ اس میں کیا جو سینئر ترین لوگ تھے وہ ہمیشہ میاں صاحب کو مشورے بھی دیتے تھے، فیصلے بھی ہوتے تھے کہ شاہد خاقان کو انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا. He could have straight away nominate Mian Shahbaz Sharif or any member of his family. He did actually. تو بعد یہ He did. Sorry? His first choice, his first announcement was Shahbaz Sharif.
वो ठीक है 45 डेज के बाद, यू राइट, एक इंटरम था, लेकिन बाद में देखा कि जो मंसूबे, जो बिजली के मंसूबे हैं, जो इन द पाइपलाइन है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का एक रोल था एनर्जी प्रोजेक्ट्स को वक्त पे लगाने के, लोड शेडिंग खत्म करने, तो उसमें पार्टी ने, उन्होंने अपना फैसला जो है उसको बदला और उसको कहा कि जी टोटल जो है रिमाइंडर पीरियड जो है टिल मई 2018 तो वो करेंगे। ये कहना जी कि शरीफ फैमिली फैसला करती है और फिर आपने मुझे भी ब्रैकेट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। उसमें देयर वर मेजॉरिटी जो कि शरीफ फैमिली के मेंबर उन फैसलों में नहीं थे। मैं आई कैन काउंट यू ए नंबर, क्या आसन इकबाल शरीफ फैमिली के मेंबर है, क्या ख्वाजा शरीफ फैमिली के मेंबर है, क्या अपना बजीज था शरीफ फैमिली के मेंबर है, जावेद लतीफ शरीफ फैमिली, ये सारे जो सीनियर लोग हैं पार्टी में वो सारे अपने इनपुट देते हैं। ये तो देखें जी, ये प्रोलिटिकल, अगर आपने एक इंप्रेशन देना है या एक आर्गुमेंट लेना है तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आई थिंक इज फैक्चुअली नॉट ट्रू। और बिल्कुल जो बेस्ड, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखिए ना कि नेशनल असेंबली के अंदर आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पंजाब असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, दोनों को अभी उन्होंने कम से कम मरियम नवाज ने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा अभी तक, लेकिन उनको वाइस प्रेसिडेंट का पार्टी के अंदर ओहदा दे दिया गया, वहां पे भी यही मसला। और मैं ये बिल्कुल बावसूख जराए से आपको बता रहा हूं कि आपकी अपनी पार्टी के कई लोग नाराज रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक जिस तरह नाराज रहे कि जी उनको नैब की हिरासत में ले लिया गया, लेकिन ख्वाजा साहब को कोई पूछने वाला नहीं था, यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा को उनके घर जाना पड़ा, उनकी फैमिली के साथ जाके मिलना पड़ा। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस हीट को फील करती है। नहीं, देखें जी, अगर शहबाज शरीफ ने परफॉर्म किया तो मेरा ख्याल है कि टू हैव ए सरनेम ऑफ शरीफ शुड नॉट बी ए डिसएडवांटेज। सारी दुनिया में जो परफॉर्म करते हैं, अगर क्या मियां शहबाज शरीफ ने परफॉर्म नहीं किया चीफ मिनिस्टर का, किया है, और अगर सब उसको रिकग्नाइज करते हैं तो अब मेरा ख्याल है उनका अगर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो उसमें कोई यानी कबाहत नहीं होनी चाहिए। आपने हमजा का फिर बात की, हमजा भी इज ए परफॉर्मर, ही हैज बीन डूइंग, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है, और जो काम हुए हैं इस मुल्क में वो भी आपके सामने है। आई थिंक यू हैव टू डिसाइड ऑन मेरिट। ये कोई डिसक्रेडिट नहीं होना चाहिए कि जी फलाम बंदा जो रिलेटिव है या फलाम बंदा जो है वो शरीफ उसका टाइटल लगा है तो वो उसको तो आप अलग करते हैं। आई थिंक इट्स अनफेयर। और बहुत बार लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री इटसेल्फ इज अ स्मॉल थिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जो कि पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को, और वो चॉइस आपकी अपनी चॉइस की मिनिस्ट्री थी। लेट मी ऑल्सो टेल यू, ही वांटेड टू हैव इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो बात ये जी कि जो भी मेरा ख्याल है इससे टीम वर्क होता है। एक ये समझना कि जी, और मरियम को जो आपने कहा बाई दी वे कि जी वाइस, देयर आर 16 वाइस प्रेसिडेंट्स, इज वन ऑफ द 16 वाइस प्रेसिडेंट, द वर्क शी इज डूइंग फॉर द पार्टी, वो अपने लिए तो नहीं अपने वो मोबिलाइज करती नहीं, अवाम को जो जितने आपके बाई इलेक्शन हुए, जो आपके सामने एजेके में या जीबी में जो भी एक्टिविटी है, तो किसी को तो करनी है ना जी। अपनी जान हथेली पे रख के आप सिक्योरिटी रिस्क भी लेते हैं और आप सारा काम करते हैं। आई थिंक शी हैड वेल डिजर्व्ड वन ऑफ द 16 वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो बड़ी ये रूटीन की चीज देखें। अगर हमने ये फैसला कर लेना है कि हमने सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना है तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट। आई थिंक वी शुड गो बाय परफॉर्मेंस। दिस इज द क्रिटिसिज्म जो आपके ऊपर आपके मुखालिफिन लगाते हैं, और यू ऑब्वियसली हैव टू आंसर दैट। आप वो जो 16 वाइस प्रेसिडेंट का आप नाम ले रहे हैं, मरियम नवाज के अलावा मुझे उन बाकी 15 में से कोई एक बता दीजिए जो आज तक कोई इलेक्शन लड़े बगैर वाइस प्रेसिडेंट बन गया हो पार्टी के अंदर, कोई एक नाम जो शरीफ ना हो। देखिए, अब आप देखें ना, यू आर पुटिंग डिस्क्वालिफिकेशन कि जी आप जितना मर्जी, मुझे आप इतना बता दें कि 16 में से मेजॉरिटी, आई वुड नॉट से ऑल, जिन्होंने मरियम नवाज जितना काम किया पार्टी के, तो क्या इज इट समथिंग विद इन द पार्टी, senior most ranks, I'm not supposed to devil the name, they have proposed time and again कि मरियम नवाज को एलिवेट करें। It's unfair that she should be one of the 16 vice presidents. मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, ये अब नहीं है, ये पिछले 2-3 साल में ये कई दफा, और सीनियर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, सीनियर यू नो दे मे बी लेस देन 7-8, उनमें से ये प्रपोज कर चुके हैं जी मरियम नवाज जितना काम कर रही है, जितना वो पार्टी के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा ख्याल है उसको आप डिपेंड करता है आप किस एंगल से मंसूर साहब देखें, क्योंकि ये तो एंडलेस चीज है। आई थिंक वी शुड बी कंस्ट्रक्टिव, वी शुड लुक पॉजिटिव। इससे पार्टी का मसला है, पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज एनी इशू। कभी मैंने कम से कम लास्ट क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन वो इसकी रीजन ये है कि आपकी पार्टी के ऊपर फिर ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये बेसिकली
ایک فیملی کارپوریشن بن چکی ہے. یہاں پہ جی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ شریفوں کی مرضی سے ہوگا اور کچھ نہیں ہے. یہاں پہ اگر نواز شریف ہیں تو نواز شریف کے بعد مریم نواز ہیں یا شہباز شریف ہیں اور اس کے بعد یا پھر حمزہ ہیں یا پھر جنید صفدر ہیں, اور اسی طرح یہ چلے گا تو انہی کی ڈومین میں چلے گا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اینڈ the same criticism is there on the Bhuttos also. وہاں پہ بھی یہی صورتحال بنتی ہے. Can you assure me کہ ایک دن مسلم لیگ نون کا صدر اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ شریفوں کے علاوہ بھی کوئی بنے گا کبھی؟ میں آئی ایم شیور کہ میرٹ ول پرویل جی انشاءاللہ. آئی تھنک وی ویری پروگریسو پارٹی. ہماری میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اسپیس اس پارٹی میں ملتی ہے. جب میں کامرس منسٹر بنا پہلی دفعہ, میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اسٹیٹ منسٹر بنا. میں آئی بین فرام ارلی 90s, آلموسٹ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں ایکٹیو پالیٹکس اینڈ پبلک آفس میں ہولڈ کرتا رہا ہوں. تو میں تو اس وقت کوئی ریلیٹو نہیں تھا. I mean, I was just one of the PML worker, and I was obviously active. I was president of Lahore Chamber in early 90s and all this thing. I had my own professional background as chartered accountant, جس کے بیسس مجھے بورڈ آف انویسٹمنٹ سیٹ اپ کرنے کے لیے دیا گیا. تو آج وہی بورڈ آف انویسٹمنٹ چل رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, یہ محل یہ مفروضہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے کہ جی نہیں, جس میرٹ پہ ہوگا جو بھی آئے گا انشاءاللہ میرٹ پہ سب کو موقع ملے گا, اور موقع ملنا چاہیے اور موقع ملتا ہے. دیکھیں آپ یو آر اونلی ٹاکنگ ون ہاٹ سیٹ, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو آپ کی جو کی پوزیشنز تھیں, جو یعنی میاں صاحب کے ٹینیور میں ارلیئر میں بھی اور اس میں بھی, وہ سارے لوگ نان شریف سے بھی. صرف اگر چیف منسٹر, یہ آپ کو یاد ہوگا مرحوم مجید نظامی صاحب, انہوں نے ہی ٹوک اسٹینڈ. اس نے کہا جی کہ میاں صاحب واز لٹل ریلکٹنٹ آن دا سیم فلسفی. جب پہلی دفعہ میاں شہباز شریف چیف منسٹر بنے کہ جی لوگ کہیں گے بھائی کو بنا, انہوں نے اللہ ان کو بخشے, مجید نظامی ٹوک اسٹینڈ. انہوں نے کہا جی از اٹ اے ڈس ایڈوانٹیج کہ جی وہ آپ کا بھائی ہے تو کام کرتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا, وائی؟ آپ کو یاد ہوگا جو پہلی دفعہ لیکن ویسے آن اے لائٹر نوٹ ڈاکٹر صاحب, اگر اس وقت یہ نہ کیا گیا ہوتا اور تو میرے خیال میں چودھریز آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ چودھریز کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ اچھا ہی رہا ہے اوور آل. لیکن اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی جس میں اب وہ نازات ہوتے ہی. ہاں جی نہیں, اگر دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اپنے ذاتی جو ہے ٹائٹلز کی وجہ سے پالیٹکس کرتے ہیں, اصول کی پالیٹکس نہیں کرتے. میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ پھر 99 کا کو ہوا تو وہی جو ہمارے اسٹالورٹس تھے وہ اپنا ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے اپنا وہ قبضہ کر رہے تھے اس بلڈنگ پہ, پی ایم ایل این کے آفس میں. آپ کو یاد ہوگا آفٹر جنرل مشرف تو پیپل ریولٹڈ, کنگز پارٹی بن گئی. اور کنگز پارٹی کدھر بنی؟ آپ پارا میں بنی. مجھے اسٹوری بتاتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کو کہاں کیسے ٹریٹ کیا گیا. سینئر موسٹ لوگ انفارچونیٹ ہے بٹ they were forced to make a king party. تو میرے پاس میاں اظہر آئے اپنا دسمبر 2001 میں مجھے کنونس کرنے کے لیے. میرے گھر میں 26 اپنا لا انفورسنگ ایجنسیز کا پیرا ہوتا تھا. اٹ واز ڈکلیئرڈ سب جیل مائی ہاؤس. تو وہ مجھے کنونس کرنے ہے کہ تینوں بڑا مشرف پسند کر دیتے, مینو پرائم منسٹر بنا رہے تھے, تو یو آر گوئنگ ٹو دی نمبر 2. I just flatly refused. میں کہا تو تے کاؤنسلر بننے قابل نہیں, تو you should thank me and Nawaz Sharif who made you counselor, who made you mayor and they made you governor. اب آپ اسی کو ڈچ کرنے میرے پاس آئے تو تھینک یو ویری مچ میاں صاحب, آپ جائے. تو یہ میں جی یہ پاسٹ بڑی بٹر ہسٹریز ہیں, اس میں ہم نہ ہی جائیں تو اچھا ہے. یہ تو کہتے ہیں وہ کتاب تھا مجھے لوگ لکھنا چاہیے. اب میں بیکاز یو ہیو بین دا فائنانس منسٹر آلسو, میں تھوڑا سا اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج لینا چاہوں گا. آج جو بھی ملک کی صورتحال ہے, آئی مین ڈالر از رومنگ اراؤنڈ 168 167 اس وقت یہ صورتحال ہے, اور ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی بالکل آؤٹ آف کنٹرول جا چکا ہے. ان امپلائمنٹ از آن دا رائز, دو وی ہیو سم گڈ فگرز ان دا ایکسپورٹ سیکٹر, لیکن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ بھی اب وائٹنگ کی طرف جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب بھی سوال کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ آج یہ کیوں صورتحال ہے, یو آر دا پرسن ہو از آلویز بلیمڈ. جی اسحاق ڈار صاحب کی جو تھے ان کی یہ پالیسیز ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا, نہ اس قسم کے LNG کے کانٹریکٹس کیے ہوتے, نہ انہوں نے ڈالر کو زبردستی جو ہے وہ 110 سے نیچے رکھنے کی کوشش کی ہوتی, تو آج ہمارے ملک کی یہ صورتحال نہ ہوتی. What do you have to say about that? دیکھیں جی, اس سے بڑا جوک ہو نہیں سکتا. یو کین ناٹ ہولڈ اینی تھنگ فار ایئرس. نمبر 1 یہ جو کہتے ہیں جی کہ ڈالر 110 پہ آرٹیفیشل تھا, یہ تھا وہ, ساری چیزیں جو ہے نا ابھی کیوں واپس 10 مہینے پہلے they brought it back from 168 to 152. They realized that this is the gravest mistake they made, Mansoor Saab.
अच्छा, The trigger of the महंगाई in Pakistan was due to leaving the rupee बिल्कुल यानी जाए बाहर में जब जाना चला जाए और स्लाइड कर ले। इस मुल्क में मैं अपने छोटे से तजर्बे से कह रहा हूं कि आई हैव डेल्ट विद पोस्ट सैंक्शंस पीरियड 98 99 और उसमें भी रुपया इसी तरह 69 पे चला गया था। वी हैड टू जस्ट डू नेसेसरी मॉनेटरी एंड अदर मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, तो ये वापस 52 पे आया था। फिर कू के बाद 8 महीने 52 पे रहा टिल इट वाज स्लाइडेड अगेन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह के कहने पे। तो बात ये है कि आप ये खुद यही खान साहब हैं जो कंटेनर पे चढ़ के कहते थे मुझे एड्रेस करके कि 1 रुपए डिवैल्यू हो जाए तो इतने अरब 100 अरब का वो बात करते थे नुकसान होगा। आज उनको ये नहीं पता कि उन्होंने 44 रुपीज डिवैल्यू किया, तो इसका 4400 अरब के वो जिम्मेदार हैं। ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती जो कि एक बंदा एक यानी हफ्ते के लिए तो शायद कर रहे मैनेज या एक महीने के लिए कर ले। यू कांट डू इट फॉर 4.5 years। मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग 12 दिसंबर 2017 को आफ्टर आई लेफ्ट अबाउट अ मंथ उसने कहा जी पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी। आप गूगल करें, चेक करें, ब्लूमबर्ग मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014 टिल द रीसेंट स्लाइड। अभी शुरू हुई थे 2-3 रुपए। तो बात यह है कि हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमें बाहर से डिक्टेशन नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब वो स्टेबिलिटी जो थी, वो जो डॉलर की स्टेबिलिटी थी, डॉलर की स्टेबिलिटी के ऊपर यही तो एतराज किया जाता है कि बेसिकली इस इकोनॉमी के अंदर डॉलर पंपिंग हो रही थी आपकी वजह से, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी थी। इट वाज एक्चुअली एन अननेचुरल स्टेबिलिटी। मेरी वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, दिस इज अ रॉन्ग एलिगेशन। व्हाई इमरान खान गवर्नमेंट डज नॉट गिव द फिगर्स के कितनी पंपिंग हुई है। दिस इज दिस इज अ व्हाइट लाई। वो जब कहते थे कि $2 billion अ मंथ इसहाक डार इसको पंप कर रहा है टू हैव द करेंसी स्टेबल, तो अभी तो इनको आए हुए 36 महीने हो गए, तो $72 बिलियन की सेविंग किधर है? दे हैव नॉट डन इट। ये एक सिर्फ होती है इसके लिए जो इंटरनेशनल अदारों की एक वो रीजन देते हैं जी स्लाइड होने दें, वो होता है एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी आपकी। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट। मैं उनको हमेशा कहता था कि आप ग्राउंड रियलिटीज को नहीं, यू फॉलो द बुकिश थ्योरीज। हम भी पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में अपने ग्रेजुएशन में, तो ये इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो बात यह है कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है कि जब आप डिवैल्यू करते हैं, आपकी जो यू आर बेसिकली एन इम्पोर्ट कंट्री, आपका ट्रेड डेफिसिट कंट्री है आप, तो आपका जो कॉस्ट है, एक तो आपका एक्सपोर्टर बाहर से आके आधा, मैं अभी प्रेसिडेंट लाहौर से, तो आई कैन टेल यू विद बैकग्राउंड कि आधा डिस्काउंट लेते हैं आपके ओवरसीज जो आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं आपके एक्सपोर्टर से। जो बाकी आधा होता है 6 से 8 हफ्ते का होता है पीरियड, एवरीथिंग प्राइसेस गो अप, द इन्फ्लेशन गो, लेबर, एवरीथिंग इज बैक टू स्क्वायर वन। कंट्री उसका नुकसान हो जाता है, महंगाई आसमान पे जाती है। एग्जैक्टली ये हुआ कि इन्होंने अभी नाउ दे हैव, अभी तो इनके रिकॉर्ड पे हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा जी हमें जीडीपी हाई ग्रोथ पे जाना पड़ेगा। और अभी आपने जो बात की ना कि अभी दोबारा वाइडन हो रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्होंने आगे उसको करने के इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको ग्राउंड कर दिया। इट्स वेरी इजी कि आप अपने घर का सारा आप कहीं जाके पनाह में रह लें, घर के कोई बिल आपको नहीं आएगा। इन्होंने इकोनॉमी को वर्चुअली स्ट्रैंगुलेट कर दिया। कोविड से पहले इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी। तो बात यह है कि अगर सारी दुनिया के अदारे रिकग्नाइज करते थे कि पाकिस्तान की यानी पिछले कई डेकेड्स में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है 5.8%, रेवेन्यू वाज डबल, सिक्योरिटी की हमने डिफेंस बजट को डबल किया, हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ट्रिपल किया, हमने सूबों को डबल किया ताकि वो अपने, तो ये सारी चीजें जो थी इकोनॉमी में डूइंग वेरी 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 फाइन। आप गूगल करें, आप देखें कि ग्लोबल, अब इनके कहने से तो नहीं होगा ना, इनके कहने से तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं कि जी कोई बंदा किसी चीज को आर्टिफिशियली होल्ड नहीं कर सकता, और ये दे ना कौम को निकाल के कि जी स्टेट बैंक के इतने इतने $1 बिलियन खर्च हो गए। ये मैं आपको बताता हूं कि दे हैव चेक्ड इट। यू नो वी आल्सो हैव वेल विशर जो बताते हैं हर चीज। आपको याद है बहुत इन्होंने क्लेम्स किए थे, व्हाई दे हैव नॉट मेड इट पब्लिक। $6 बिलियन इन 6 years, विच वाज जो आप पंपिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमी, मुल्क की इन्फ्लेशन को कंट्रोल हुआ, मुल्क की ग्रोथ 6 के करीब चली गई, मुल्क का रेवेन्यू डबल हो गया, तो व्हाट एल्स यू वांट। $6 बिलियन आपने फ्री नहीं दिए। बाय द वे ये भी बात माइंड में रखें, $6 बिलियन इन 4 साल से ऊपर में अगर आपने पंप किया है, तो आपके जो उसने फ्री नहीं देने, आपको वो बाइंग सेलिंग का फर्क पड़ रहा है ना, ₹1 का या ₹1.5 का। तो $6 बिलियन से इफ यू कुड keep the rupee stable, foreign direct investment inflow, because that is one incentive, your stock market boomed to the highest in South Asia and 5th in the world। तो ये सारी चीजें, उसके जो डिविडेंड थे वो आपके इनको पता ही नहीं है, they are amateur।
They don't know how to run the economy. खुद का अभी कन्वेंशन सेंटर में अपना खान साहब ने कि जी मेरी टीम को पता नहीं था, उनका तजर्बा नहीं था, IMF ने हमें ये कह दिया, रुपया स्लाइड हो गया, और सारी चीजें उन्होंने पूरी अपनी दे दी है, अपनी टीम पे डाल दी है. ये नहीं कहा कि उनके 200 बंदे किधर थे जो उन्होंने कहा था मेरे पास. डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने रेवेन्यू की बात की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बार बार ट्वीट्स करते हैं, मुबारकबाद देते हैं FBR को, इवन दो ही हैज चेंज्ड अबाउट 7 चेयरमैन FBRs, लेकिन इसके बावजूद जो रेवेन्यू कलेक्शंस है वो ये कह रहे हैं कि बार बार वो रिकॉर्ड तोड़ रही है जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुई हमारी कलेक्शंस, और जो 5,800 अरब का जो हमारा टारगेट है, वी विल अचीव दैट वेरी इजीली. अच्छा, लेट मी देखो मंसूर साहब, आप काइंडली खुद जरा थोड़ा सा रिसर्च भी कर लें. हमने रेवेन्यू ऑब्वियसली पिछले साल से बेहतर होना चाहिए ना. यू हैव न्यू बेस लाइन. हमने 1940 से रेवेन्यू को पकड़ा, हम इसको 3,850 पे ले गए, which was a very smart increase of almost 97-98%. Okay. Basically average roughly 20% flat average of per annum. इनका पहला साल इन्होंने क्या कौन से वादा किया? इस आगदार ने तो 5 साल किया अपना डबल 1940 और 38 अपने आप मैं 1 साल में 8,000 अरब दूंगा. आई एम श्योर यू वुड हैव सीन हिज स्टेटमेंट्स एंड देयर ही इज ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, 8,000 का वादा किया था 1 साल में. चलें जी, 1 साल छोड़ें, अब 5 साल में करके दिखा दें. पहले साल नेगेटिव ग्रोथ आफ्टर 23 इयर्स, नेवर बिफोर. पहले साल रेवेन्यू ग्रोथ हमारे से 12 बिलियन कम. ईयर 2 रियल सेंस में नेगेटिव ग्रोथ, क्योंकि 100 बिलियन जो टैक्स रिफंड देने थे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक सप्लीमेंट्री ग्रांट दिला के दे दिए ताकि वहां बुक ना हो, रेवेन्यू फ्लोट यानी ऊपर रहे, और 70 बिलियन के रोक लिए. 170 आप एडजस्ट कर ले. सेकंड ईयर नेगेटिव ग्रोथ. यस, थर्ड ईयर में ग्रोथ हुई है रेवेन्यू की, जहां आए थे करीबन 21%. What is the average for 3 years so far? 7% per annum. हमारे अखराजात, हमारी इशू सेकंड ये है मंसूर साहब, इन्होंने रेवेन्यू को 8,000 पे लेके जाना था, अखराजात को फ्रीज करना था, 2 मुलाजम होने थे, साइकिल पे दफ्तर जाना था, वहां 3 चपरासी होने थे, दैट्स ऑल, उसी में काम चलना था, अखराजात नहीं बढ़ने थे. 35% करंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज, रेवेन्यू इज ओनली इंक्रीज जो लेटेस्ट 21%. जो डिफरेंस है दैट इज योर बजट डेफिसिट एंड दैट यू बोरो. और इसी वजह से हमारे कर्जे जो हैं, जो उन्होंने वादा किया था कौम से कि मैं 10,000 अरब का कर्जा कम करूंगा. अगेन यू गाइस हैव ऑल द रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स एंड द स्क्रीनशॉट, वरना मैं आपको भेज सकता हूँ. 10,000 का वादा किया था कि मैं कम करूंगा. आज पोजीशन ये है कि 3 साल में 15,000 अरब का कर्जा बढ़ चुका है. 10,000 कम करना था. 5,000 बिलियन पर एनम. हमारे 5 साल में टोटल इंक्रीज डेट में थी करीबन 10,000 अरब. We did 11,000. डॉक्टर साहब वो यही कहते हैं ना कि ये बेसिकली वो कर्जा है जो हमें कर्जा वापस करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है. नहीं, एक सेकंड. ये I'm glad you have touched it. Yes, please help your viewers to understand. जी. अगर आपने कर्जा लिया है नया वापस करने के लिए, तो that is not an increase to the कर्जा. And I give you a very simple example. अगर if you owe to a bank 1 लाख रुपया या 1 मिलियन रुपया and it has come due, so you leave that bank, you get from new bank another million. वो आपने वापस किया तो आपका कर्जा उतना ही है. ये exactly that's what they mislead to the people. ये कर्जा अगर रियल सेंस में कम दिया है ना वापस, तो कम होना चाहिए, स्टॉक कम होना चाहिए ना. अगर आपने इनहेरिट किया 24,900 अरब रुपया, विच मीन 25 ट्रिलियन, तो अगर आपका वो आज जो है वो 40 ट्रिलियन पे चला गया, तो इसका मतलब है कि अगर आपने $10 बिलियन वापस किए तो आपने, या 10 बिलियन रुपए वापस किए तो आपने फिर 25 बिलियन नए लिए. ये क्या करते हैं, आधा सच बताते हैं कि जी हम ना पिछली हुकूमतों का कर्जा पे करती है. नंबर 1, हमने मुशर्रफ के भी पे किए, हमने उसका बॉन्ड भी पे किया, हमने पीपल्स पार्टी के भी पे किए. इट्स अ ड्यूटी. आपने अगर सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर आपने, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो कितना कर्जा था, और आज अगर कर्जा फ्लैट है, तो इसका मतलब है इन्होंने सिर्फ कर्जा लिया पिछले कर्जों को लेने के लिए, पे करने के लिए. दैट्स व्हाई द सेम नंबर, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. अगर कर्जे में कमी आई है तो वाकई जो 10,000 कम करना, तो अगर 25,000 का आज 23 होता तो 2,000 बिलियन कम होता. रियल सेंस के 10,000 वापस किया तो 8,000 लिए, 2,000 हमने अपने पास से दिया. अगर वो 25,000 बिलियन या 25 ट्रिलियन 40 पे चला गया, इसका मतलब है जो कुछ भी आपने पे किया, आपने 15 बिलियन एक्स्ट्रा उससे भी ज्यादा बोरो किया. यू हैव बोरोड न्यू मनी, नॉट ओनली टू रीपे द ओल्ड लोन, बट आल्सो बोरोड 15 बिलियन एक्स्ट्रा. तो ये 15,000 बिलियन एक्स्ट्रा. तो ये आई होप आई एम क्लियर. ये जो कह रहे हैं पिछली गवर्नमेंट का हमने जी कर्जा किया, वो फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है. उनको साथ ये भी बताना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए
کہ جی आप जब कहते हैं कि इतना कर्जा पिछली हुकूमतों का दिया, ये भी बता दें कि नया कर्जे आपने कितने लिए, तो आपको पता चल जाएगा. आगे चलते हैं, आगे चलें. लेट्स कम टुवर्ड्स द पॉलिटिकल साइड नाउ. इलेक्शंस की थोड़ी सी बात कर लें. जी जी र्यूमर है, बातें होती हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के क्वार्टर्स के अंदर, लाहौर के अंदर, कि नेक्स्ट इलेक्शंस जो हैं वो हो सकता है अगले साल भी हो जाएं. लंदन की हवाओं में भी कुछ इस तरह की अफवाहें हैं या नहीं है? देयर आर सर्टेन रीजंस के शायद ये चाहें ये लोग जो बात करते हैं, लेट्स बी ओपन. लोग जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि इनको काजी फाइज ईसा सूट नहीं करते 23 में द इलेक्शंस टू बी हेल्ड व्हेन ही वुड बी चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वन मफरूजा. इनको कुछ महकमों के जो लोग हैं एट द टॉप ऑफ हेल्म ऑफ अफेयर, ये चाहते हैं कि उसमें भी चेंज से पहले इलेक्शन हो जाए. तो ये एक जनरल एनालिसिस है कि कुछ वजूहात ऐसी हैं कि ये चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन. हमने भी ये सुना है कि जी अगला साल शुड बी इलेक्शन ईयर. इट्स क्वाइट पॉसिबल. और ये क्वाइट हर हुकूमत में होता है जी. ये मुझे याद है कि 99 में इसमें अभी आपने जो बात कही कि सर्टेन नॉमिनेशंस भी इसके साथ अटैच्ड हैं, तो ऐसी सूरत में एक एक्सटेंशन भी का भी जारी बात है, एक मुद्दा है. बात तो हो रही है, बातें हो रही हैं. एक बातें एक्सटेंशन जो है वो उसमें तो आप लोग सपोर्ट कर चुके हैं पहले. अगली एक्सटेंशन अगर आती है उसके बारे में मियां साहब का क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए ऑब्वियसली अब ना तो पिछली एक्सटेंशन मियां साहब ने अकेले दी थी. अगर आपको याद हो, अगेन आपके जो है लाइब्रेरी में सारी फुटेजेस होंगी. वो तो चूंकि रिसेंटली आए थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी. दैट वाज थ्रू अ प्रोसेस. सीनियर 3 लोग पाकिस्तान से आए थे, ऑलमोस्ट डजन, लेड बाय मियां शहबाज शरीफ साहब. इनकी मीटिंग्स एक होटल में हुई यहाँ, जो कि पब्लिक में हो चुकी है, उसकी फुटेज वगैरह चल चुकी है. उसके बाद दे कॉल्ड ऑन मियां साहब, मैं उसमें मौजूद था, उसमें दे कॉल्ड ऑन मियां साहब एंड उस पे जो रिकमेंडेशन यही थी कि जो मुल्क के हालात हैं, जो भी है, ये एक्सटेंशन जो है वो हमें इसको यानी सपोर्ट कर देना चाहिए. आई एम टॉकिंग द ट्रूथ. तो मियां साहब ने अभी रिसेंटली आए थे और मियां साहब ने कहा कि so basically it was शहबाज शरीफ साहब led delegation जिसने मियां साहब को ये सजेस्ट किया. जो मीटिंग जो थी जो मीटिंग्स हुई थी वो एक होटल में हुई थी, पब्लिक प्लेस पे हुई थी, और उसकी फुटेज मीडिया बाहर खड़ा था जब हम निकले. और वहां से हम सीधा मियां नवाज शरीफ साहब के पास करीबन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर के लिए, 1 घंटे के लिए पूरा डेलीगेशन गया और उनको कहा जी हमने ये डिलीब्रेशन किया, हम रिक्वेस्ट करते हैं. तो वो उसमें, अब मैं ये नहीं आपको बताऊंगा ना, आप काइंडली पूछें कि उसमें क्या सारे के सारे पार्टिसिपेंट थे, क्योंकि देयर इज अ डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी रूल. तो उसमें हो सकता है कुछ डेसेंट वॉइसेस भी हो, कुछ किसी का और भी कोई आइडिया हो. मैं जाती तौर पे अगर मुझे पूछेंगे स्टैंड अलोन, नॉट एज PMLN, नॉट ऑफ दिस प्रोसेस, तो आई वुड हैव यूज्ड दैट अपॉर्चुनिटी कि अगर हमने एक्सटेंशन देनी भी है, हम रिपीट देनी भी है, वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और उसमें हम लिखते हैं कि द चीफ्स विल हैव ओनली वन टेन्योर. अच्छा, द मैटर शुड रेस्ट फॉरएवर. दैट्स वाज द बेस्ट टाइम दैट वी कुड हैव डन इट. बट ऑब्वियसली एज आई सेड, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. I may be one odd voice in about a dozen. तो हमें ऐसी चीजों को, मैं अच्छा आप मुझे कहेंगे आपने क्या नॉवल बात कर दी, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ. आई एम सेइंग दिस. ये जब हमारी 18th अमेंडमेंट हो रही थी, तो उससे पहले हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और हमने बड़ा क्रिटिसाइज, मैं, रजा रुबानी साहब, हम बहुत उसमें लीड थे. 4 बंदे थे, जासन इकबाल साहब थे, सफदर अब्बासी साहब थे. 3 साल 4 साल उस डॉक्यूमेंट तैयार होने में लगे. तो मैंने वो टेकअप किया. पीपल्स पार्टी वाज इन गवर्नमेंट. तो हमने वहां एग्री किया था कि यार ये बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं होनी चाहिए. जैसे खान साहब भी कहते थे, मैंने बस 15 से 20, आपने देखे होंगे क्लिप्स में, अहमद मीर, 15 से 20 से ज्यादा मैंने कैबिनेट नहीं बनानी, मगर होगा तो फिर तबाही हो जाए. तो मैंने वो टेकअप किया उसमें कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, PCCR. मैंने कहा भाईजान अभी इट्स द टाइम कि हम, जो हमारी बात होती थी जब हम दोनों पावर्स में नहीं थे, तो उसको इंट्रोड्यूस करें. तो उन्होंने कहा व्हाट इज योर प्रपोजल. मैं कहा 10% ऑफ द पार्लियामेंट और 10% प्रोविंशियल असेंबली शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट नंबर. मुझे पहला जो जाहिर है कि वो गवर्नमेंट में थे, उनके ऑलमोस्ट 80-90 तो बंदे थे उस वक्त. उन्होंने कहा कि बट अबाउट बलोचिस्तान, डार साहब वहां तो 6.5 बंदे 7 बंदे से कैबिनेट कैसे चलेगी. मैं कहा ओके, लेट मी फर्दर प्रपोज, और 15 विच एवर इज हायर. तो मैं कहा बलोचिस्तान तो टेक केयर हो गया, बाकी 10%. फिर मुझे काउंटर प्रपोजल 15% का. मैं कहा 15 इज टू मच, क्योंकि मैं फिर इवेंचुअली, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वाज इन फ्यू मीटिंग्स. तो ये फिर हमारी 11% पे हमारी तय हुआ. लेकिन विद अ बिग कैविएट
कि ये अगले इलेक्शन से होगा, अच्छा, नॉट फ्रॉम दिस इलेक्शन पर्सपेक्टिव। तो मैं ये ठीक। कह रहा हूं कि वी शुड फॉलो दैट आइडियोलॉजी विच वी फॉलोड फॉर द साइज ऑफ द कैबिनेट, के एग्री। पर्सपेक्टिव चेंज की। लेकिन मैं डॉक्टर साहब कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, वो जो जी आपने फरमाया कि जी शहबाज शरीफ जी साहब एक डेलीगेशन के साथ आए, आप लोगों ने आपस में बैठ के उसको डिस्कस किया एंड जी, अल्टीमेटली मीटिंग हुई जी 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 मीटिंग हुई, ठीक है। इस सारी बात से फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये जो कहा जाता है कि इज अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन, और वो हमेशा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जो कुछ भी होना चाहिए वो उनके साथ मिल के होना चाहिए। उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि जी मैं अपने भाई को जो है वो उनके घुटने पकड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। हमजा शहबाज साहब का जो एक बयान है कि जी हम अपने ताया को समझाने की कोशिश करेंगे। ये वो क्लैश है आपकी पार्टी के इंटरनली जो बैठ के डिसाइड नहीं कर पा रहा। आपके पार्टी के कायद का एक कायद मींस नवाज शरीफ साहब का एक अपना थॉट प्रोसेस है, पार्टी के सदर का एक अपना थॉट प्रोसेस है, पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज साहबा का एक अपना थॉट प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपके पार्टी के एमएनएज एमपीएज यहाँ तक के ग्राउंड के ऊपर मौजूद वर्कर्स और सपोर्टर्स भी जो हैं दे आर एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड राइट नाउ। नहीं, मैं समझता थोड़ा सा उसमें मंसूर साहब थोड़ी सी लचक पैदा करें कि दो सके भाई है तो सके भाई हैं, हर एक अपना अपना एक सोच और एक टेम्परामेंट होता है। ये आज नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हमें यानी मुफाहमत की बात, बेसिकली इसको मुफाहमत नैरेटिव कहा जाता है ना जी, आपके ठीक, डिस्कशन में, टॉक शोज में जी, मियाँ जी, साहब का मजामत का लफ्ज है, हालांकि वो गलत है। अगर हम ये कहें कि जी आइन की बालादस्ती की बात मजामत है तो बड़ा अफसोस की बात है। अगर वो कहेंगे जी पार्लियामेंट जो है वो उसकी सुपरमेसी हो तो वो मजामत है, बड़ी बात, बुरी बात है। रूल ऑफ लॉ मजामत है बहुत, इट्स अ बेसिक फंडामेंटल कि जो आपका आइन कहता है, जिसके लिए पाकिस्तान में एक यानी प्रोसेस है और उसको अमल होना चाहिए। जहां तक एक अपना जो होता है नहीं, अपना स्टाइल, अपनी हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है, तो वो उनकी कोई नई नहीं है, ये आज से नहीं है। ये मैं कम से कम 25 साल तो मैं बाउच कर सकता। ही ऑलवेज हैड सॉफ्ट कॉर्नर, he always had this mufamat ki, which is everybody. I may have certain own my ideology, my own thinking. तो इसको मेरा हरे बुनियाद बना के तो नहीं, लेकिन को डॉक्टर डिबेट साहब द करना। सॉर्ट जी ऑफ स्पीचेस, जिस किस्म की तकरीरें मियां साहब पीडीएम के जलसों में किया करते थे, आई एम जी टॉकिंग अबाउट गुजरांवाला, कराची, क्वेटा खास तौर पे, और उसका मतन अगर आप उठा के देखें तो जी मैं एंड आई थिंक यू वुड एग्री विद मी कि अगर मैं वही लिखी हुई तकरीर शहबाज शरीफ साहब के हाथ में पकड़ाऊं और मैं उनसे कहूं जनाब ए जरा पढ़ के दिखाओ मैनू जरा स्टेज पे खड़े होके, तो शहबाज शरीफ साहब विल बैक ऑफ एंड से कि नहीं नहीं, मैं मेरी ये नहीं पढ़ देखिए वो सकता, मैं ये नहीं दो बोल चीजें सकता जो आपने, कुछ मियां साहब ने बोला है। मंसूर साहब, दो चीजें आपने जो फरमाया। एक तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो मियां शहबाज नहीं बोलेंगे, परहैप्स मे बी कि he would choose different words even if he has to express के जो मियां साहब एक्सप्रेस करते हैं वो शायद डिफरेंट अल्फाज का चुनाव करेंगे और अपनी उसकी वो ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो मियां शहबाज शरीफ का अपना एक वो आज से नहीं है। मैं रिपीटिंग 25 साल से हम उनको जो हमारी इनर कोर है, और उसमें जैसे मैंने कहा कि मैं तो उसको रिलेटिव नहीं था, आई वाज जस्ट प्रोफेशनल। नंबर दो कि अब देखना यह है कि अगर आपने गुजरांवाला साइड किया या दूसरी चीजें साइड किए, आई थिंक कि किसी को तो ये बात खड़ा होना कि नहीं होना मुल्क के लिए। एंड he's one of the only statesmen I would say left in the country. तो अगर वो एक या तो कह दें कि वो बात गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, अब ये आइन बदल लेना, आइन में आप एक पार्टनरशिप में है। डॉक्टर साहब आई एम नॉट कंटेस्टिंग ओवर हियर के जी कौन जी सही है या कौन गलत है, या बड़े मियां साहब ठीक है या छोटे मियां साहब ठीक है, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। ठीक माय ठीक है। पॉइंट इज कि बड़ा भाई जब एक बात करता है तो छोटा भाई तक उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। जब नहीं, छोटा ये ऐसी भाई बात नहीं, आपकी अपनी नहीं फैमिली के अंदर बैठा हुआ एक भाई वो मैं अल्फाज दोहराने के लिए तैयार नहीं है, तो एक आम कॉमन पाकिस्तानी को नहीं, या नून लीग के फॉलोअर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके इस अभी बयानिए के लिए कभी सड़क पे बाहर निकलेगा? अभी मियां नवाज शरीफ ने करोड़ों लोगों को जबान दे दी है, इंक्लूडिंग योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। द बट मीडिया वुड नॉट नॉट शहबाज टॉक। शरीफ, बट नॉट शहबाज शरीफ। मैं I'll come to that. हाँ, हाँ, मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था जिसको आपने कोट किया, आई थिंक इट हैज चेंज द माइंडसेट ऑफ कॉमन मैन इन पाकिस्तान, अच्छा, एंड इट इंक्लूड्स योर कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज मीडिया। ठीक, आई हैव सीन वेरी बोल्ड, एंड मैं आई विल जस्ट रेफर यस्टरडे नजम सेठी का कॉल, हम्म, जो पीस ही रिटन इन द फ्राइडे टाइम्स। मैं समझता हूँ कि किसी को तो वो लीड लेना है। एक रहा मामला कि मियां शहबाज शरीफ में डिफर विद द वर्डिंग, but at the end of the day, not now but in the last 25-30 years since they are in politics, at the end of the day the final word will be of Mian Nawaz Sharif, हम्म, and he would follow. He will make submissions, he will give ideas, he will give his proposal,
But at the end of the day, he's a very loyal and very obedient younger brother. I think Allah सबको ऐसे भाई दें. तो मैं समझता हूँ कि politics aside, he will go along finally what Mian Nawaz Sharif decides. But This is a reality. बट डॉक्टर साहब व्हाट्स हैपनिंग इज कि पिछले कई महीनों से आप लोग बेसिकली, जिस थोड़ी पहले आपने कहा जी शहबाज शरीफ साहब एक वक्त के लिए लेकर आए, वी डिलिबरेटेड ऑन द होल थिंग, और उसके बाद वी डिसाइडेड, एक डेमोक्रेटिक फ्रंट को सामने रख के मुझे इस तरह लगता है जैसे नून लीग अपने अंदर की जो इंटरनल इस वक्त लेग पुलिंग हो रही है उसे छुपाने की इस तरह कोशिश करती है कि वो अपना वो चेहरा दिखाना नहीं चाहती. पहले तो चलें ठीक है, ये बयानिया की बात होती थी, एक बयानिया है, एक बयानिया है, हम लोग बड़े डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम इसको डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर जो फैसला होता है वो हम कर देते हैं. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि देयर इज वाइज वेरी विजिबल क्रैक कमिंग इन द पार्टी. मिसाल के तौर पे मरियम औरंगजेब के सामने मलिक अहमद खान को लाके खड़ा कर दिया गया. मलिक अहमद खान को जो है वो शहबाज शरीफ ने अपना तर्जुमान जो है वो अपॉइंट कर दिया. इट नेवर हैपेंस इन एनी पार्टी. हमेशा आप जानते हैं कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो होता है वो ही जो होती है या होता है वो ही बैठ के पार्टी के तमाम मामला को चलाता है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि एवरीवन नोस, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मरियम औरंगजेब जो है वो मरियम नवाज साहिबा की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो उनके सामने मलिक अहमद खान को लाके खड़ा कर दिया गया कि जी अब ये मैं जो कहूंगा वो ये बताएंगे. और मलिक अहमद खान आप भी जानते हैं कि पंजाब हुकूमत में भी उनके तर्जुमान रह चुके हैं. देखिए मंसूर साहब, आप मेरे दो चीजों मिक्स कर रहे हैं. पार्टी की और जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उसकी एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का उसके पास शी हैज लोड्स ऑफ वर्क. ठीक है. पार्टी का ओवरऑल बयानिया, पार्टी की मसलन जो इस वक्त पीडीएम की अलायंस है उसके सारे काम को हैंडल करना, ओवरऑल जो हमारा पार्लियामेंट्री काम है उसको कोऑर्डिनेट करना, हमारी इवन ओवरसीज मीटिंग्स को अरेंज करना, दिस ऑल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का काम है. यू हैव ए स्पोक्स पर्सन जो कि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के जुबैर साहब थे जो अनाउंसमेंट हुई थी एट सर्टेन पॉइंट. तो ये अपना एक पर्सनल स्पोक्स पर्सन जो है, इट इज ओनली फैसिलिटेटिंग द जॉब ऑफ द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, नंबर वन. अगर ये खान साहब, अहमद खान साहब, उनके बिहाफ पे एज ए स्पोक्स पर्सन कोई जो इंस्टेंट इश्यूज अराउंड हो या उस पर बयान दें और उनको रिप्रेजेंट करें, तो इट डजंट मीन कि ही इज बेसिकली ट्रांसग्रेसिंग जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के रोल में. तो बल्कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को एक लीड मिल रही है कि जी ये है प्रेसिडेंट पीएमएलएन का जो है लाइन इस एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, एंड शी विल आल्सो डू द सेम थिंग. एंड दिस हैज बीन हैपनिंग. मेरा ख्याल है कि कुछ साथी हैं जी जो हर चीज को इशू बना लेते हैं और वो बड़ा आसान होता है इशू बनाना. सर परसों हुआ है डॉक्टर साहब, परसों इट हैपेंड इन लाहौर के सुबह के वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो पूरा ग्रुप है लेड बाय मलिक अहमद खान साहब, राना मशहूद साहब और भी उसमें मतलब 12-13-14 लोग थे. उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑन द 3-year परफॉर्मेंस ऑफ मुस्लिम लीग नून, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माजरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर. 4 घंटे गुजरते हैं, 4 घंटे के बाद अज़मा बुखारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं ऑन द सेम इशू, ऑन द सेम टॉपिक. अज़मा बुखारी वाज नॉट इनवाइटेड इन द मॉर्निंग इन दैट पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको नहीं बुलाया गया. और शाम को जब अज़मा बुखारी बैठी तो उस पूरे ग्रुप को वहां पे नहीं बुलाया गया. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक पार्टी एक दिन में 2 मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब ऑन ग्राउंड नजर आना शुरू हो गया है कि पार्टी मैं कुछ अर्ज करूं सर, मैं कुछ अर्ज करूं सर. पीएमएल पंजाब ने एक सेल कायम किया था विच इज रिसर्च सेल. ये तकरीबन 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है ऐसे, जिसको राना मशहूद सब लीड कर रहे हैं. वो सेल वाज कन्वर्टेड इनटू अ विंग. इट हैज क्वाइट अ फ्यू प्रोफेशनल, सम पॉलिटिशियंस. हमारा मेरे कोलीग थे राना अफजल साहब, मेरे साथ आपको याद है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे फाइनेंस में, फिर उसके बाद वो जी उनके साहबजादे भी हैं. तो ये सारे वो जो विंग है एक्चुअली ये उनका रिसर्च था, और ये पेपर जो था उन्होंने जब लॉन्च किया वो उस रिसर्च विंग का सारा काम था. ऑब्वियसली मैंने टू बी फ्रैंक मैंने एग्जैक्टली तो वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी अज़मा बुखारी साहब की, लेकिन शी इज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पंजाब. And if she who was not present on the press conference in the morning. मैं वो उस होराइजन उसका नाम है, वो जो रिसर्च विंग है, वो अगर उन्होंने अपना को काम पब्लिक किया है एज लॉन्ग एज दोनों के जो यानी इन्फो कह लें या जो प्रेजेंटेशन कह लें या जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कह लें, अगर उसमें कोई फर्क है
کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اسما بخاری صاحب کچھ اور کہہ دو, وہ مجھے then I would be concerned. But if they both spoke same thing and explained, I frankly don't know what was the logistic reason why. would have been better کہ دونوں ایک ہی اکٹھے بیٹھ جاتے تو ایک ہی دفعہ ہو جاتا. مجھے دونوں کو دیکھنا پڑے گا کہ what is the difference. آپ بلکہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں کہ was there any difference in the presentation of the two presentations? Not really. They were both talking about 3-year performance of Pakistan Tehreek-e-Insaf Punjab government, and they were also even 20 days late. By the way, 15 اگست 2018 کو پنجاب کی جو جتنے بھی ایم پی ایس تھے انہوں نے اپنا حلف اٹھایا تھا. آپ کی یہ پریس کانفرنس 20 دن لیٹ ہوئی ہے. دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ آن اوور ہیئر ان لاہور. مطلب میں حیران ہوں کہ آپ کے پارٹی کے سینئرز کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ دس از واٹس گوئنگ. اینڈ بائی دا وے, the opposition leader in Punjab Assembly, Hamza Shahbaz, is nowhere to be seen. You cannot find him. He doesn't talk to the media. He's absolutely invisible right now. اچھا میں عرض کروں جی کچھ اس میں. آپ یہ جو ابھی آپ نے فرمایا 20 دن کا تو is not a big delay جی. I mean you have to condone this thing. اپوزیشن میں ڈیٹا کو ایکسیس کرنا کئی چیزیں آپ کو آسانی سے نہیں ملتی. although پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس بھی ہے, دوسرے ادارے بھی ہیں, لیکن مثلا جب خان صاحب نے کنونشن سینٹر میں اپنا کیا تو وہ بھی انہوں نے اگلے دن نہیں کر دیا. آپ کو پتا جب ان کو 3 سال ختم ہوئے, ویری ریسنٹ ایپیسوڈ, یو مائٹ ہیو سین اٹ. اب میری ڈیوٹی لگی کہ میں نے اس کو ریجوائنڈر دینا ہے. ہمارا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ویکینڈ بفور لاسٹ پی ڈی ایم کا سیٹرڈے کو سرپرائز لاس تھا. وی آر جوائننگ آن زوم میٹنگ. سنڈے کو جلسہ تھا. تو آئی ہیڈ ٹو ورک آؤٹ مائی اون انگیجمنٹ کہ میں کب کر سکتا ہوں. مجھے تو ویسے ہی بین کیا, اور جب سے میرے ساتواں انٹرویو تھا تو آپ کی ایک کولیگ لائیو مجھے 7ویں منٹ پہ آفر کروایا گیا ایک چینل سے, کیونکہ وہ میری سچ اور وہ جو ہے میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی. میں کئی دفعہ چیلنج کر چکا ہوں, خان صاحب جن نہیں ہے نا تاڑے 200 یا 50 یا انہیں لے آؤ, ایک ہو جائے لائیو تاکہ پوری قوم دیکھ لے. جتنے ایلیگیشن آپ لگائیں میں ساری آپ کو جواب بھی دوں گا, پھر میں بھی کوئی آپ کو تھرو کروں گا کیسے بڑا کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے منصور صاحب اتنا دے دیں آپ ٹائم, 20 دن تو کچھ بھی نہیں ہوتے جی. 3 سال کی پرفارمنس ڈیٹا کمپائل کرنا ہوتا ہے. I'll give it to you. ویسے ابھی یہ جو آپ نے ایک پروپوزل دیا, میں ویسی ایک رائے لے رہا ہوں آپ سے. Would you be willing to sit with Asad Umar صاحب یا حماد اظہر صاحب if I arrange that? Obviously we cannot do it on a television channel, but over here if we invite them, would you be willing to sit face میرا to خیال face ہے with them? میں نے منظور صاحب, I think now the challenge should be at an appropriate level, and the appropriate level is no less than Imran Khan and his finance minister. He can have all these people with him and on the national hookup, not on the YouTube. ورنہ تو میں ساری چیزیں کہہ چکا ہوں جی. میں نے ابھی ریسنٹلی دیا آلموسٹ 90 منٹس آئی گیو ریجوائنڈر, آئی گیو ایوری ان کی اکنامک انڈیکیٹر جو ان کا کلیم تھا اس کو جواب دیا. I'm sure you would not have a time to see that. Last section of the interview. تھوڑا سا جو اگلے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی جو آپ لوگوں کی, کیونکہ آپ نے پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی, پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ دیئر اینی مور. Do you think you are now a weakened opposition, a weakened opposition alliance? Not at all. I don't think so. میرا خیال ہے کہ there's a full confidence in the remaining members of the PDM. Obviously ہر پارٹی کا اپنا prerogative ہے. They take independent decisions. PPP and ANP left PDM by choice. Nobody can force them. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی ہے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آن پی ڈی ایم. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بیسکلی انہوں نے ڈیل کی ہے اور ڈیل کے تحت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی گئی ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ شہباز شریف صاحب آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے لنکس رکھنے کے لیے تیار ہیں. ویئر ڈو یو سی دس ایکچولی, اگر کسی کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے سو وائی ڈو یو وانٹ ہم کہ ان کے ساتھ دوبارہ لنکس جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں؟ I think we have to make distinction between the two جو آپ نے باتیں کہی جی. ایک یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب is talking as سربراہ of PDM, ٹھیک ہے, and he feels bitter کہ جی جب پوری پروسیس اینڈ پوری جو ایک موومنٹ تھی وہ پیک پہ گئی تھی تو اس اسٹیج پہ آپ کو یاد ہوگا they were almost to launch لانگ مارچ وغیرہ, وہ اس اسٹیج کے اوپر PPP left. تو ان کو وہ انہوں نے پبلکلی بھی کہا کہ جی وہ چھوڑا بام دی, اس طرح کی باتیں کی. Now you have to see the second half your statement شہباز صاحب کے حوالے سے کہ جی you see as opposition leader in the National Assembly ہم بہت ہی مائکرو اپنے آپ کو ڈس انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. there is a parliamentary role he is playing as leader of the opposition. He has to carry all the opposition along, کیونکہ وہ صرف پی ایم ایل این کے نہیں ہیں,
लीडर ऑफ द अपोजिशन, ही इज लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द एंटायर अपोजिशन। तो इसलिए वो जो पार्लियामेंट्री लिंक्स हैं और होने चाहिए। यहाँ आपको भी पता है माशाल्लाह, यू वेरी वेल वर्स्ड, यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो अपना कैफेटेरिया में इकट्ठे चाय पी रहे होते हैं, एक दूसरे के सोशल। हमने इसको एक ऐसा यानी इसमें बाइफर्केशन पोलराइज कर दिया है कि वर्चुअली अगर हाँ हमारी लड़ाई है तो बाहर निकल के हम एक दूसरे के गिरबान पकड़े हों और बिल्कुल हमारा ना हो। आई थिंक मियां शहबाज शरीफ को आप ये थोड़ा सा स्पेस दें कि जी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, एज लॉन्ग एज ही इज देयर, ही हैज टू कैरी ऑल द पार्टीज एंड देयर पीपीपी हैज इट्स ओन पार्लियामेंट्री लीडर हु इज बिलावल भुट्टो, सो ही हैज टू कैरी दीज पीपल देयर जी। तो ये मैंने ये वजह। Thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया. It was a pleasure talking to you. And may you have good health. बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। नाज़रीन, इसहाक डार साहब की ये तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि लंदन के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है वो क्या सोच रहा है, उसके क्या ख्यालात हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।